Hello, 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 my dear students. How are you? I hope all are absolutely fine and studying well. Welcome to my channel. I am Shweta, your English teacher, and thank you so much for the support, for the love. Like आपके जो comments हैं, मैम explanation is very good, मैम you are very good teacher. So thank you so much for that. Next, the most repeated question, मैम क्वेश्चन आंसर्स कब कराएंगे? मैम क्वेश्चन आंसर्स करवाइए, मैम क्वेश्चंस एक्सप्लेन करवाइए, मैम एक्सरसाइज करवाइए. सो हियर इट इज. Today we are going to do complete chapter How I Taught My Grandmother, which is the very first chapter of Kaveri, the new book of class 9. जी, ये रहेगी एक वन शॉट वीडियो जिसमें आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ऑथर्स इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज, activities, short questions, long questions, so each and everything is here in this video. चलिए स्टार्ट करते हैं. So how I taught my grandmother, हम पढ़ चुके हैं इसको ऑलरेडी, but still as this is the one short video, तो ये वीडियो पढ़ने के बाद आपको इस चैप्टर में कहीं कोई डाउट नहीं रहने वाला है. फाइन. So the chapter is written by Sudha Murthy. Okay, first of all, author introduction. Sudha Murthy here in front of you, born on August 1950, is a renowned Indian author, philanthropist and educator who pioneered women's roles in technical fields as telco's first female engineer. As the former chairperson of the Infosys Foundation, she championed widespread social initiatives in education and rural development. She is also a prolific writer known for her simple storytelling style. So here she is. I think आप देखकर समझ सकते हैं. Like she's wow. चलिए. Yeah, here is the summary of the story. The story is set in a small village in Karnataka and is narrated by a young girl who shares a close bond with her grandmother. तो ये जो स्टोरी है ये कहाँ की है? ये जो स्टोरी है इसका सेटिंग है बेटा कर्नाटका के एक छोटे से गांव का एक ये सेटिंग है इसमें, जिसमें जो क्या है नरेट की गई है किसके थ्रू? एक गर्ल है, एक छोटी बच्ची है जो अपना और अपनी दादी माँ का जो बॉन्ड है वो इस चैप्टर के थ्रू शेयर कर रही है. Fine. The grandmother is an affectionate and wise woman who has never been to school, so she cannot read or write. So जो ग्रैंड मदर हैं वो बहुत उससे ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत वाइज लेडी हैं, लेकिन कभी स्कूल नहीं गई हैं, इसलिए वो लिख पढ़ नहीं पाती हैं. Despite this, she has a deep love for story. और उनको क्या है इसके इन सब के बावजूद भी उनको स्टोरीज से बड़ा प्यार है. उनको स्टोरीज सुनना इवन पढ़ना अच्छा लगता है, बट शी इज नॉट एबल टू रीड. ठीक है, तो कैसे वो अपने शौक को पूरा करती हैं? कैसे क्या कैसे उनको फील हुआ कि हाँ पढ़ना भी जरूरी है? कैसे देखते हैं. एवरी डे द नरेटर रीड्स अ पॉपुलर कन्नड़ नॉवल कॉल्ड काशी यात्री टू हर ग्रैंडमदर. डेली जो नरेटर है, कौन है नरेटर? ग्रैंड डॉटर. ठीक है, वो एक पॉपुलर कन्नड़ नॉवल काशी यात्री अपनी दादी को पढ़ के सुनाती है. The story becomes a special part of their daily routine and the grandmother eagerly waits to hear what happens next. तो ये जो स्टोरी है काशी यात्री उनकी डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है, और जो ग्रैंड मदर है वो नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए हमेशा ईगर रहती हैं कि नेक्स्ट पार्ट मुझे बताओ आगे क्या हुआ. ठीक है, बट फॉर दैट शी हैज़ टू वेट फॉर 1 वीक, क्योंकि हर एपिसोड 1 वीक के बाद आता है. फाइन.
She is especially interested in the main character, an old woman who longs to visit Kashi but sacrifices her desires for the happiness of a young orphan girl. Specially interested है, क्यों? किस बात से वो स्पेशली इंटरेस्टेड, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस नॉवल में? ड्यू टू दैट वन स्पेशल कैरेक्टर, जो एक ओल्ड वुमन है जिनकी इच्छा है कि वो काशी की यात्रा करके आए, लेकिन फिर एक ऑर्फन गर्ल की इच्छा को पूरी करने के लिए वो अपनी खुद की इच्छाओं को सेक्रीफाइस कर देती हैं. One day, the narrator has to attend a wedding in a nearby village and stays away for a week. एक बार क्या होता है कि जो नरेटर है उसको पास वाले विलेज में शादी के लिए जाना होता है. किसी की शादी है तो उसको अटेंड करने के लिए वो वहां जाती तो वो 2-3 दिन के लिए है, बट पूरा एक वीक वहां पर रह जाती है. During this time, a new episode of the novel is published. But the grandmother cannot read it on her own. अब meanwhile जो एक वीक का टाइम है, इस वीक में एपिसोड का, काशी यात्री का जो नेक्स्ट एपिसोड है वो आ जाता है, लेकिन जो दादी माँ है ना वो पढ़ पाती हैं ना समझ पाती हैं. ठीक है, खुद से वो उसको नहीं पढ़ पाती हैं. She feels frustrated, dependent and helpless because she has to wait for someone else to read it to her. उस टाइम पे उनको लगता है कि क्या मतलब मैं इसको नहीं पढ़ पा रही हूँ, कोई और मुझे आके बताएगा. और वो उसकी, जैसा हमने पढ़ा कि उनकी डेली लाइफ का पार्ट है, उनको वो पढ़ना, वो स्टोरी उनको बहुत अच्छी लगती है. कहीं ना कहीं जो स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है उससे वो अपने आप को कोरिलेट कर पाती हैं कुछ चीज़ों में, क्योंकि दादी की भी इच्छा है काशी यात्रा करने की. तो यहाँ पर उनको लगता है कि मुझे अब मैं कैसे पढ़ूँ. This experience deeply affects her and makes her realize the importance of being literate. ये इंसिडेंट उनको डीपली अफेक्ट करता है और उनको समझ में आता है कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी है. When the granddaughter returns, the grandmother expressed her strong desire to learn how to read and write. जब ग्रैंड डॉटर वापस आती है तो ग्रैंड मदर अपना जो डिज़ायर है किस चीज़ का, कि कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, ये उसको बताती हैं. She decides that she does not want to depend on anyone anymore, not even for something as simple as reading a story. अब क्या है कि वो डिसाइड करती हैं कि अब वो किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती. किसके लिए? एक स्टोरी रीड करने के लिए भी. डिस्पाइट हर ओल्ड एज शी इज डिटरमाइंड टू बिकम लिटरेट. एज काफी है, ओल्ड हो चुकी हैं, स्टिल शी इज डिटरमाइंड कि अब उनको पढ़ना है, अब उनको सीखना है, मतलब सीखना है. The narrator takes on the role of a teacher and begins teaching her grandmother the Kannada alphabet. अब जो ग्रैंड डॉटर है टेक्स ऑन द रोल ऑफ अ टीचर, एक टीचर की तरह रोल को अडेप्ट करती हैं और अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ाना शुरू करती हैं. क्या पढ़ाना शुरू करती हैं? कन्नड़. The grandmother is a dedicated student. She studies regularly, practices writing and puts in great effort to learn. जो ग्रैंड मदर है वो बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ती हैं, ठीक है, रेगुलरली पढ़ती हैं, डेली प्रैक्टिस करती हैं और पूरा एफर्ट लगा देती हैं सीखने के लिए. Although it is difficult for her at first, she does not give up. हाँ, शुरू में उनके लिए मुश्किल था, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया. गिव अप नहीं करना मतलब उन्होंने हार नहीं मानी. After a few months of hard work, the grandmother achieves her goal.
कुछ महीनों के हार्ड वर्क के बाद ग्रैंड मदर अपना गोल अचीव कर लेती हैं। On the day of Saraswati Puja, which is considered an auspicious day for learning, she reads a portion of Kashi Yatri all by herself. सरस्वती पूजा के पावन दिन पर वो काशी यात्री का एक पार्ट खुद से पढ़ती हैं। This is a proud and emotional moment for both of them. और ये proud और emotional, प्राउड क्यों? क्योंकि इतने कम टाइम में और इतनी एज में दादी माँ ने ये कर दिखाया। और वाइफ और ग्रैंड डॉटर, बिकॉज उसने भी तो पूरे एफर्ट किए हैं, तो दोनों के लिए बहुत प्राउड और इमोशनल मोमेंट ये होता है। दिस इज द समरी। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू मे प्लीज। चलिए, नाउ explanation of the chapter, line by line explanation is here. When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. अब ये बातें कौन कह रहा है? देखो, ये है ग्रैंड डॉटर, सॉरी, एंड ये है ग्रैंड मदर। ये कौन है? ये है नरेटर जो हमें पूरी स्टोरी बता रही है। फाइन। ये कौन है? द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, राइट? ठीक है। सो व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, लगभग 12 साल की, I used to stay in a village in North Karnataka with my parents. मैं कहाँ रहती थी? नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। जब मैं लगभग 12 साल की थी, उस टाइम पे मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कर्नाटका के एक छोटे से गांव में रहती थी। Those days, the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. The weekly magazine used to come one day late. उस समय ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था, तो हम क्या करते थे? हमें जो मॉर्निंग वाला पेपर है वो हमें आफ्टरनून में रिसीव होता था, और जो वीकली मैगजीन है वो हमें एक दिन लेट मिलती थी। मतलब और जगह अगर वो मंडे को पहुंच रही है तो हमारे पास ट्यूसडे को पहुंचती थी, अगर वो ट्यूसडे को पहुंच रही है तो हमारे पास वेडनेसडे को पहुंचती थी, और अगर और जगह वेडनेसडे को पहुंच रही है तो हमारे पास थर्सडे को पहुंच, मतलब एक दिन लेट। All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazines and the post. हम सब ईगरली मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ वेट करते थे बस का, जो आती थी, क्या लेकर आती थी? पेपर्स, वीकली मैगजीन और पोस्ट। तो जो बस ये सारी चीजें लेकर आती थी उसका हम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से, उत्सुकता से वेट करते थे। At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. उस समय पे त्रिवेणी कन्नड़ लैंग्वेज की बहुत पॉपुलर राइटर थी। She was a wonderful writer. वो बहुत ही अद्भुत लेखिका थी। Her style was easy to read and very convincing. उनका जो लिखने का स्टाइल था वो बहुत अच्छा था, मतलब इजीली समझ में आने वाला, और सबको क्या कहते हैं, सबके हिसाब से वो लिखा जाता था। Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. तो उनकी स्टोरी मोस्टली क्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ डील करती थी। साइकोलॉजिकल यानी साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक, ठीक है, somehow related to the mental state of some person, ठीक है, कि ऑर्डिनरी जो लोगों की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड होती थी और हमेशा बहुत ज्यादा
इंटरेस्टिंग होती थी उनकी स्टोरीज। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। आगे चलते हैं। Unfortunately for Kannada literature, she died very young. लेकिन कन्नड़ लिटरेचर का दुर्भाग्य देखो कि वो बहुत छोटी एज में उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर बात हो रही है बेटा त्रिवेणी की। कौन है त्रिवेणी? द पॉपुलर कन्नड़ राइटर। फाइन। इवन नाउ after 40 years people continue to appreciate her novels. even अभी भी आज भी लगभग 40 साल के बाद लोग उनके नॉवेल्स को अप्रिशिएट करते हैं, उनको पढ़ते हैं। One of her novels called Kashi Yatri was appearing as a serial in the Kannada weekly Karmavira then. तो उनका एक नॉवल जिसका नाम था काशी यात्री, वो एक सीरियल, एक सीरीज के रूप में जो कन्नड़ वीकली जो मैगजीन आती थी कर्मावीरा, उसमें आती थी। सीरीज के रूप में मतलब उस कहानी को क्या किया गया, उसके पार्ट कर दिए गए उस नॉवल के, और उस नॉवल के हर एक एपिसोड को पब्लिश किया जाता था। जो वीकली जो आती थी मैगजीन कर्मावीरा, उसमें उस स्टोरी का एक पार्ट हर वीक पब्लिश होता था। फाइन, चलिए। It is a story of an old lady and her ardent desire to go to Kashi और वाराणसी। क्या the story, it is the story, कौन सी स्टोरी? काशी यात्री। काशी यात्री जो स्टोरी थी वो एक ओल्ड लेडी और उनकी काशी या वाराणसी जाने की जो तीव्र इच्छा थी उसके ऊपर बेस्ड थी। Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate पुण्य। बहुत सारे लोगों का मानना था कि काशी जाना और भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करना या उनके दर्शन करने से अल्टीमेट पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। This old lady also believed in this and her struggle to go there was described in that novel। तो ये जो लेडी थी, जो ओल्ड लेडी थी, कौन सी ओल्ड लेडी? जो काशी यात्री की प्रोटैगनिस्ट थी। ठीक है, वो क्या थी? वो इन सब में बिलीव करती थी और वहां जाना, काशी जाना और वहां जाने का जो स्ट्रगल था उनका, वो डिस्क्राइब किया गया था, वो बताया गया था इस नॉवल में। In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding। इस स्टोरी में एक यंग ऑर्फन गर्ल भी थी। ऑर्फन क्या होता है बेटा? ऑर्फन सभी को पता है वैसे तो, ठीक है, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी टेल यू, ऑर्फन होती है अनाथ, मतलब जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, जो क्या है, जिसको प्यार हो जाता है लेकिन शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। In the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi. She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi. एंड में क्या होता है, जो ओल्ड लेडी है वो अपना जितना भी जो सेविंग करती है काशी जाने के लिए, वो सारा उस ऑर्फन गर्ल को दे देती है। क्या कह के कि इसकी जो खुशी है वो लॉर्ड विश्वेश्वरा के दर्शन करना, काशी जाना, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कहीं ज्यादा जरूरी है, कहीं ज्यादा अच्छी है। यहां तक क्लियर? आई होप सभी को क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई डाउट है प्लीज आप मुझे बता सकते हैं थ्रू योर कमेंट्स। आगे चलते हैं बेटा। माई ग्रैंड मदर कृष्टका। क्या है ग्रैंड मदर का नाम बेटा? ग्रैंड मदर का नाम है कृष्टका। नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। कभी स्कूल नहीं गई तो वो पढ़ भी नहीं पाती थी। Every Wednesday, the magazine would come and I would read the next episode of the story to her.
हर बुधवार को मैगजीन आती थी और मैं उनको काशी यात्री का नेक्स्ट एपिसोड पढ़ के सुनाती थी। During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. उस टाइम पे वो अपना सारा काम भूल जाती थी और बहुत कंसंट्रेशन के साथ बड़े ध्यान से उस स्टोरी को सुनती थी। Later, she could repeat the entire text by heart. बाद में वो पूरे टेक्स्ट को, मतलब जितना मैंने उन्हें सुनाया है वो पूरे को रिपीट कर सकती थी, इतना ध्यान से वो सुनती थी। My grandmother too never went to काशी. मेरी ग्रैंडमदर भी कभी काशी नहीं गई थी। And she identified herself with the novel's protagonist. तो वो क्या है, नॉवल के प्रोटैगनिस्ट के साथ कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, वो रिलेट कर लेती थी क्योंकि वो भी ओल्ड लेडी थी, ग्रैंडमदर भी ओल्ड लेडी है, वो जो प्रोटैगनिस्ट थी वो भी काशी जाना चाहती थी और ग्रैंडमदर भी काशी जाना चाहती हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस पर्सनालिटी से रिलेट कर पा रही हैं। So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. तो और सबसे ज्यादा, मतलब जो भी स्टोरी को पढ़ता था या सुनता था, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड कौन होता था? मेरी दादी ही होती थी। और वो चाहती थी, बहुत मतलब वेट करती थी कि स्टोरी में आगे क्या हुआ ये मैं उनको पढ़ के सुनाऊं। After hearing what happened next in Kashi Yatri, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. तो वो सब सुनने के बाद काशी यात्री, मतलब काशी यात्री में क्या हुआ है ये सब जानने के बाद वो क्या करती, अपनी फ्रेंड्स के साथ जाती, मंदिर के आंगन में बैठती जहां वो सबको आगे की स्टोरी सुनाती थी और हम सब क्या करते थे, हम सब बच्चे मिलकर हाइड एंड सीक खेलते थे। मतलब दादी जाती थी मंदिर और हम उनके साथ जाते थे। दादी बहुत सारी दादियों के साथ मिलके, मतलब आपस में बैठ के वो स्टोरी को डिस्कस करती थी और हम सब बच्चे वहां पर हाइड एंड सीक खेलते थे। क्लियर? आगे चलते हैं। She would discuss the latest episode with her friends. तो वो लेटेस्ट एपिसोड जो भी मैंने उनको पढ़ के सुनाया उसको वो डिस्कस करती थी वहां पर अपनी फ्रेंड्स के साथ। At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आता था कि इस स्टोरी का इतना डिस्कशन क्यों रहता था, उस टाइम पे नहीं समझ में आता था, है ना। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. एक बार मैं अपने कजिन्स के साथ पास के गांव में शादी में चली गई। In those days, a wedding was a great event. उस टाइम पे जो शादी हुआ करती थी वो ग्रेट इवेंट क्यों कहा? क्या आज के टाइम में शादी ग्रेट इवेंट नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन आज के टाइम में ऐसा होता है कि आपने एक बैंक्वेट बुक किया, वहीं पे गेस्ट आएंगे, वहीं पे खाएंगे, वहीं पे एंजॉय करेंगे और वहीं से चले जाएंगे। बट पहले के टाइम में जब शादियां होती थी, एक एक महीना पहले घर को डेकोरेट कर दिया जाता था, गेस्ट आने शुरू हो जाते थे, लड़की घर से बाहर नहीं जाएगी, लड़का घर से बाहर नहीं जाएगा, आज ये रिचुअल है, कल वो रिचुअल है, सब ऐसे, मतलब शादी ऐसे जैसे मेला लग जाता था, है ना। तो उस टाइम पे शादी एक ग्रेट इवेंट हुआ करती थी। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्व्स थोरोली। हम सब बच्चे हमने खूब एंजॉय किया। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, savoring the freedom because all the elders were busy. हम खूब खाते, खूब खेलते, अपनी फ्रीडम का फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सारे एल्डर्स तो बिजी थे। I went for a couple of days but ended up staying there for a week. हालांकि मैं 2 ही 3 दिन के लिए गई थी, लेकिन पूरा 1 वीक मैं वहां पर रही। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जब मैं अपने गांव वापस आई, मैंने अपनी दादी माँ को रोते हुए देखा, उनकी आंखों में आंसू देखे। I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situation.
मैं सरप्राइज थी क्योंकि मैंने उनको कभी भी रोते हुए नहीं देखा था, कितनी भी प्रॉब्लम हो मैंने उनको रोते हुए नहीं देखा था। What had happened? ऐसा क्या हो गया था? I was worried. Avva, is everything all right? Are you okay? क्या हो गया था? मुझे चिंता हो रही थी, तो अब मैंने अव्वा से पूछा। अव्वा कौन है? अव्वा ग्रैंडमदर। क्या सब ठीक है? क्या आप ठीक हैं? I used to call her Avva, which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka. तो मैं उनको क्या बुलाती थी? अव्वा बुलाती थी, जिसका मतलब होता है माँ। मतलब कन्नड़ लैंग्वेज में माँ को अव्वा बुलाते हैं। She nodded but did not reply. She nodded, उन्होंने सिर हिलाया लेकिन आंसर नहीं किया। I did not understand and forgot about it. मुझे कुछ समझ नहीं आया लेकिन मैं भूल गई उसको। Like बच्ची थी, ठीक है, जो समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो फिर वो अपनी मस्ती में अपना आपस में सबके साथ मिक्सअप हो गई, तो फिर वो भूल गई। In the night, after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. रात को डिनर करने के बाद हम सब छत पर सो रहे थे। It was a summer night and there was a full moon. गर्मियों की रात थी और आकाश में फुल मून था, ठीक है। अब देखो कितना कितना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है कि छत पे सो रहे हैं, खुला आसमान है, चांद है। अभी आजकल के बच्चों को, शायद आप लोगों को तो ये एक्सपीरियंस नहीं होगा क्योंकि आजकल ये चीज़ें नहीं हैं, सब एसी ऑन करते हैं और है ना, तो वो टाइम अलग था, है ना। तो सोच के मतलब मुझे भी कहीं ना कहीं अपना चाइल्डहुड याद आ रहा है। देखो, अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। अव्वा आई और मेरे पास बैठ गई। Her affectionate hands touched my forehead. उनके प्यार भरे हाथों ने मेरे माथे को टच किया। I realized she wanted to speak. I asked her, what is the matter? मुझे लगा कि वो कुछ बात करना चाहती हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. अब ये कौन बोल रहा है? ये जो बात है ये बोल रही है ग्रैंड मदर, ठीक है बेटा। ये कौन बोल रहा है? These lines are spoken by grandmother herself कि जब मैं बच्ची थी, एक छोटी सी लड़की थी, मैंने अपनी मदर को खो दिया, मतलब she passed away, और मेरी देखभाल करने वाला या मुझे गाइड करने वाला, मुझे सही या गलत बताने वाला कोई भी नहीं था। My father was a busy man and got married again. मेरे जो पिताजी थे वो बहुत बिजी थे और मेरी माँ के जाने के बाद उन्होंने दोबारा शादी कर ली। In those days, people never considered education essential for girls. उन दिनों एजुकेशन को गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं माना जाता था। So I never went to school. इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। I got married very young and had children. मेरी बहुत छोटी सी उम्र में शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए। I became very busy, और मैं बहुत बिजी हो गई घर के कामों में। Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. उसके बाद देखो पहले शादी, फिर बच्चे, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन, और मतलब उनका ध्यान रखना, उनको खिलाना पिलाना, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब किसका? ऑल ऑफ यू, यानी कि वो ग्रैंड डॉटर और जो भी उनके भाई बहन हैं उन सब का ध्यान रखने में उनको अच्छा लगता था। एट टाइम्स आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। उस टाइम पे मुझे स्कूल जाने का दुख होता था। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। लेकिन मैंने इसीलिए मैंने मेक श्योर किया, इसलिए मैंने इस बात की श्योरिटी रखी कि मेरे बच्चे और बच्चों के बच्चे स्कूल ज़रूर जाएं। मुझे जाना नहीं मिला तो मुझे उस चीज़ का हमेशा पछतावा रहता था, इसलिए मैंने ये बात को बिल्कुल कंफर्म किया कि मेरे बच्चे और बच्चों के बच्चे स्कूल ज़रूर जाएंगे, वो एजुकेटेड ज़रूर होंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल।
I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी 62 इयर्स की दादी मुझ 12 साल की लड़की को ये स्टोरी बता रही थी, वो भी आधी रात में। उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था, but I knew I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me. लेकिन हाँ, ये था कि हाँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और कुछ तो बात थी जो वो ये सब मेरे साथ शेयर कर रही थी। I looked at her face. It was unhappy and her eyes were filled with tears. मैंने उनके फेस की तरफ देखा जो खुश नहीं था, वो दुखी थी और उनकी आंखों में आंसू थे। She was a good looking lady who was usually always smiling. वो बहुत गुड लुकिंग लेडी थी, बहुत अच्छी दिखने वाली लेडी थी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरिड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। तो हमेशा किसी का चेहरा हंसता हुआ रहे और वो सडनली डिप्रेशन में आ जाए, सडनली उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाए तो वो कुछ वियर्ड हो जाता है। तो इसी तरह से मुझे आज भी उनका वो जो वरिड एक्सप्रेशन थे उनके फेस पे, वो मुझे आज भी मैं भूल नहीं पाती हूँ। I leaned forward and held her hand. मैं आगे झुकी और मैंने उनका हाथ पकड़ा। अव्वा, don't cry. What is the matter? Can I help you anyway? मैंने उनका हाथ पकड़ा और क्या कहा कि अव्वा, तुम रो मत। बात क्या है? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? Yes, I need your help. You know, when you were away, Karma Veera came as usual. हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। पता है, जब तुम वहां नहीं थी, तुम यहाँ पर नहीं थी, मतलब मुझसे दूर थी। कहाँ पर गई थी वो? कहाँ गई थी? शादी में। उस टाइम पे एज यूजुअल कर्मावीरा आई। कर्मावीरा क्या है भाई? कर्मावीरा द वीकली मैगजीन, ठीक है, जो वीकली मैगजीन आती थी। I opened the magazine. मैंने उसको खोला। I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatri and I could not understand anything that was written. मैंने उसको खोला, मैंने पिक्चर्स को देखा, स्टोरी को देखा, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। Many times I rubbed my hands over the pages wishing they could understand what was written. मतलब मैंने कितनी बार अपने हाथ मले, मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। But I knew it was not possible. मुझे पता था ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, तो कैसे पॉसिबल होता? इफ ओनली आई वॉज एडुकेटेड इनफ, आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। हाँ, ये पॉसिबल कब होता? अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो। मैंने ईगरली तुम्हारे लौटने का वेट किया, एक्साइटेडली तुम्हारे लौटने का वेट किया। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी। मुझे लगा था तुम जल्दी आ जाओगी और मेरे लिए पढ़ोगी। I even thought of going to the village and asking you to read for me. Even मुझे ऐसा लगा कि मैं वहीं आ जाऊं तुम्हारे पास शादी में और वहां तुमसे कहूं कि तुम मेरे लिए ये स्टोरी पढ़ दो। I could have asked somebody in the village, but I was too embarrassed going to the village and asking you. Sorry. I was too embarrassed to do so. एक बार मुझे लगा कि मैं किसी और से पूछ लूँ, मुझे ऐसा था कि मैं किसी और से पूछ सकती थी, लेकिन मुझे उसमें बहुत शर्मिंदा सा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत शर्म सी फील हुई कि मैं किसी और पर्सन से जाके पूछूं या उसको कहूं कि तुम मेरे लिए ये स्टोरी पढ़ दो। I felt very dependent and helpless. अब मुझे बहुत ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल बहुत डिपेंडेंट हूँ, मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बेबस हूँ। We are well off, but what use is money when I cannot be independent?
वेल ऑफ मतलब वो अच्छा वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मतलब हम अच्छा भला रह रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन उस पैसे का क्या फ़ायदा जब जिससे इंडिपेंडेंस नहीं मिले, जिससे मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो पाऊँ। आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर, मुझे पता नहीं था क्या आंसर करना है। मैं इस बात पे क्या कहूँगी, ये लाइन कौन बोल रहा है? ग्रैंड डॉटर, द नरेटर। वो क्या कह रही है कि मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्या बोलूँ, क्या आंसर करूँ। Avva continued, I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. अव्वा ने अपनी बात को कंटिन्यू किया और उन्होंने कहा कि मैंने तो पक्का कर लिया है कि मैं अब क्या सीखूंगी, कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखूंगी, कल से ही मैं शुरू कर दूंगी। I will work very hard. I will keep Saraswati Puja Day during Dasara as the deadline. मैं बहुत मेहनत करूंगी और सरस्वती पूजा का दिन उन्होंने क्या किया, एज अ डेडलाइन रख लिया कि इस दिन तक मुझे पढ़ना सीखना ही सीखना है। That day I should be able to read a novel by my own. I want to be independent. तो उस दिन तक मतलब मैं अपने आप को ये चाहती हूँ कि मैं उस दिन तक नॉवल को अपने आप पढूं और मैं क्या होना चाहती हूँ, अब मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमें लगता है कि नहीं अब ये चीज़ ज़रूरी है। यहाँ पर ग्रैंड मदर को रियलाइज़ हुआ कि आज उनकी ग्रैंड डॉटर उनके पास है तो वो पढ़ देती है, बट जब वो एक वीक के लिए वहाँ गई तो उनको रियलाइज़ हुआ कि उसके बिना तो वो कभी समझ ही नहीं पाएंगी स्टोरी में आगे क्या हुआ, और ऐसे कब तक वो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी। बड़ी होगी, कल को और कहीं भी जाना पड़ेगा, देयर आर लॉट मेनी रीजंस। तो अब मुझे क्या है, इंडिपेंडेंट बनना है, ये डिसाइड किया ग्रैंड मदर ने। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर। हालांकि मैंने उनके फेस पर क्या देखा, डिटर्मिनेशन देखा, मैंने उनके फेस पे दृढ़ता देखी कि हाँ उनको करना है, लेकिन मैं हंस पड़ी उनके ऊपर। Havva, at this age of 62, you want to learn the alphabet? All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen. मतलब मैं हंस पड़ी और मैं बोली अब 62 इयर्स की एज में आप पढ़ना सीखोगी, बाल सफ़ेद हो गई हैं, हाथों पे रिंकल्स आ चुके हैं, चश्मा लगाती हो, सारा दिन इतना काम करती हो, तुम कैसे पढ़ोगी? चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी। मतलब मैं ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था नरेटर का कि वो मजाक उड़ाए अपनी ग्रैंड मदर का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बट वो बच्ची थी तो उनको लगा कि आप बुढ़ापे में अब ऐसे में आप पढ़ोगी कि बाल सफ़ेद हो रखे हैं आपके, हाथों में रिंकल्स हैं, इतना मोटा चश्मा लगा हुआ है, सारा दिन तो किचन का काम नहीं होता आपसे, और आप क्या कह रहे हो आप पढ़ोगी। सो दिस वे वो थोड़ा सा हंस पड़ी, बट शी जस्ट स्माइल्ड। लेकिन ग्रैंड मदर सिर्फ हल्का सा वो मुस्कुराई। सॉरी, ये कहाँ से आ गया भाई बीच में। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। अगर आप किसी एक अच्छे रीज़न के लिए, एक अच्छे काम के प्रति अगर आप समर्पित हैं तो फिर आप किसी भी मुसीबत को पार कर सकते हो। I will work harder than anybody but I will do it. मैं हर किसी से ज़्यादा मेहनत करूँगी लेकिन मैं ये करके रहूँगी। ये वर्ड्स किसके थे? ये वर्ड्स ग्रैंड मदर के थे। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ ग्रैंड मदर? जल्दी बताओ क्या नाम था? कृष्टका, है ना? For learning there is no age bar. पढ़ने की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। The next day onwards I started my tuition. अगले दिन से मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया। अव्वा was a wonderful student. अव्वा एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। The amount of homework she did was amazing. जितना होमवर्क वो करती थी वो सच में अद्भुत था। She would read, repeat, राइट एंड रिसाइट। वो पढ़ती थी, फिर उसको रिपीट करती थी, फिर उसको लिखती थी, फिर उसको रिवाइज करती थी। I was her only teacher and she was my first student.
मैं उनकी इकलौती टीचर थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी, पहली शिष्या थी। Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. थोड़ा थोड़ा मुझे उस दिन पता था कि हाँ, एक दिन मैं कंप्यूटर की टीचर बनूंगी और hundreds of students को मैं पढ़ाऊंगी। लेकिन ये उनकी लाइफ की पहली स्टूडेंट थी। कौन? उनकी खुद की ग्रैंडमदर। The दशहरा फेस्टिवल came as usual. हमेशा की तरह दशहरा फेस्टिवल आया। दशहरा फेस्टिवल में क्या स्पेशल था बेटा? दशहरा फेस्टिवल डेडलाइन रखी थी ग्रैंडमदर ने कि उस दिन तक मुझे पढ़ना सीखना ही सीखना है, मुझे कन्नड़ सीखनी ही सीखनी है। Secretly I bought काशी यात्री which had been published as a novel by that time. मैंने चुपचाप काशी यात्री जो नॉवल थी वो खरीद ली, जो उस टाइम तक एक प्रॉपर नॉवल के रूप में पब्लिश हो चुकी थी। पहले उसके एपिसोड्स आते थे, अब क्या है, प्रॉपर नॉवल के रूप में वो पब्लिश हो चुकी है। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे पूजा वाली जगह पर बुलाया और मुझे एक स्टूल पर बैठा दिया। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटीरियल। फ्रॉक का मटीरियल दिया गया मुझे एज अ गिफ्ट। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। फिर जो उन्होंने किया वो बिल्कुल अनयूजुअल था। क्या किया? She bent down and touched my feet. वो झुकी और उन्होंने मेरे पैर छुए। I was surprised and taken aback. मैं बिल्कुल हैरान हो गई। Elders never touch the feet of youngsters. We have always touched the feet of God, elders and teachers. बड़े तो कभी बच्चों के पैर नहीं छूते हैं, बड़े कभी छोटों के पैर नहीं छूते हैं। हम हमेशा भगवान के, अपने बड़ों के या अपने टीचर्स के पैर छूते हैं। We consider that as a mark of respect, जिसको हम क्या मानते हैं? एक respect. It is a great tradition, but today the reverse had happened. ये बहुत अच्छा ट्रेडिशन था, लेकिन आज कुछ अलग हुआ। It was not correct. नहीं, ये ठीक नहीं था। She said, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter. मुझे ये सब गलत लग रहा था, लेकिन इतने में ग्रैंडमदर ने बताया कि मैं अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ, ना कि अपनी ग्रैंड डॉटर के। A teacher who taught me so well with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period. ऐसे टीचर जिसने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया, इतने प्यार से पढ़ाया और इस छोटे से टाइम में इतना मुझे एफिशिएंट बनाया कि इस नॉवल को मैं इतनी कॉन्फिडेंटली इतने छोटे टाइम पीरियड में पढ़ सकी। Now I am independent. अब मैं क्या हूँ? इंडिपेंडेंट हूँ। It is my duty to respect a teacher. अब ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। It is not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age. हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा है कि एक टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे उसका जो भी जेंडर है या जो भी एज है, डजंट मैटर। टीचर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। I did return her namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. तो मैंने भी नमस्कार किया और उनके पैर छुए और उनको क्या दिया? अपनी फर्स्ट स्टूडेंट को एक गिफ्ट दिया। She opened it and read immediately the title काशी यात्री by त्रिवेणी. उन्होंने उसको खोला और तुरंत उसके टाइटल को पढ़ दिया। वो क्या था? काशी यात्री by त्रिवेणी। And the publisher's name, और जो उसके पब्लिशर का नाम था वो भी पढ़ दिया। I knew then that my student had passed with flying colors. अब मुझे समझ में आया कि मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छे से पास हो चुका था। So this was the chapter. I hope सभी को समझ में आया हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, जैसे कि नॉवल का नेम क्या था? काशी यात्री, बट यात्री में जैसे हम आई लगाते नॉर्मली, ई है, ये ध्यान रखना है। पब्लिश कब हुई? पब्लिश कहाँ पर, किस में होती थी? कर्मवीरा। क्या है कर्मवीरा? जो वीकली जो मैगजीन आती थी उसमें ये पब्लिश होती थी।
राइटर कौन है इसके? राइटर त्रिवेणी, जो बहुत यंग एज में गुजर गई थी, जिनकी मृत्यु बहुत यंग एज में हो गई थी। ग्रैंडमदर का नाम क्या है बेटा? कृष्टका। और वो क्या करना चाहती थी? वो पढ़ना और लिखना सीखना चाहती थी। डेडलाइन क्या रखी उन्होंने? दशहरा फेस्टिवल की इस दिन तक मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी एट एनी कॉस्ट। नरेटर्स फर्स्ट स्टूडेंट, नरेटर की फर्स्ट स्टूडेंट कौन थी? हर ग्रैंडमदर। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट्स थे कुछ जो आपको याद रखने चाहिए। चलिए अब सबसे पहली एक्सरसाइज, कारण और उसके प्रभाव, कॉज इफेक्ट। कॉज और इफेक्ट मैंने ऑलरेडी इसको किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन विलेज वाज पुअर, उसका इफेक्ट क्या था? न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स अराइव्ड लेट। ठीक है, तो ये लेट आते थे क्यों? ये लेट आते थे क्यों आते थे? क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था। ग्रैंडमदर नेवर वेंट टू स्कूल, उसका क्या इफेक्ट आया? कि वो पढ़ लिख नहीं पाती थी। ग्रैंडमदर बिकेम वेरी इंटरेस्टेड, किस वजह से? नरेटर काशी यात्री पढ़ दे, इसके लिए वो इंटरेस्टेड रहती थी। सो नरेटर वेंट अवे फॉर अ वीक, उसका क्या इफेक्ट आया? उसका इफेक्ट ये आया कि ग्रैंडमदर को आगे की स्टोरी समझ भी नहीं आई ना बल्कि। ग्रैंडमदर मैरिड अर्ली, शी मिस्ड स्कूल, जल्दी शादी हो गई तो उन्होंने स्कूल मिस कर दिया। शी रिग्रेटेड नॉट स्टडिंग, एंश्योर्ड चिल्ड्रन गॉट एजुकेशन, वो खुद पछताती थी तो उन्होंने क्या किया? शी मेड श्योर कि उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे ज़रूर पढ़ पाएँ। तो ये इनके आंसर हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। आगे चलते हैं। True, false? The grandmother wanted to learn Kannada alphabet to gain independence. Very true. The grandmother asked someone in the village to read Kashi Yatri to her while the narrator was away. जब narrator गांव में नहीं थी तो grandmother ने किसी और से स्टोरी पढ़वाई। नहीं भाई, ये कब हुआ? तो ये false है। The narrator was the grandmother's first teacher and taught her how to read Kannada. जो नरेटर थी, लाइक जो ग्रैंड डॉटर थी, वो ग्रैंडमदर की फर्स्ट टीचर थी जिसने उनको पढ़ना लिखना सिखाया। बिल्कुल सिखाया भाई, वेरी ट्रू। द ग्रैंडमदर बिलीव्ड दैट देयर वाज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग, ग्रैंडमदर का मानना था कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है, जो बिल्कुल सही है। द ग्रैंडमदर टच्ड द नरेटर्स फीट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर एज अ टीचर। ग्रैंडमदर ने नरेटर के पैर छुए, उनको अपने टीचर मानते हुए उनको इज्जत देने के लिए। बिल्कुल सही। द नरेटर वॉज डिसअपॉइंटेड विद द प्रोग्रेस एंड हर ग्रैंडमदर मेड इन लर्निंग टू रीड। मतलब ग्रैंडमदर जो इतना अच्छा प्रोग्रेस कर रही थी पढ़ने में, उसको देख करके नरेटर डिसअपॉइंट थी। नहीं भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी टीचर है, अगर उसका स्टूडेंट प्रोग्रेस कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो वो कभी डिसअपॉइंट नहीं होगी। शील ऑलवेज बी हैप्पी फॉर हर। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स चली जाती है। ठीक है, एंड दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू दिस नॉवल ओनली, दिस इज द फैक्ट। जब आप सक्सेस अचीव करते हो, जब आपका रिजल्ट अच्छा आता है, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खुश दो लोग होते हैं आपके लिए, एक आपके पेरेंट, दूसरे आपके टीचर्स। तो ये है हमारी वोकैबुलरी, जिसमें हमें क्या करना है? मैचिंग करनी है। सिंक और स्विम, सिंक और स्विम को मैच करेंगे। सक्सीड और फेल अलोन, इसमें बेटा मैंने मैच नहीं किए हैं, मैंने इनके जो मीनिंग्स हैं वो सामने ही लिख दिए हैं। ठीक है, ऑन एंड ऑफ, समटाइम्स, मिक्स एंड मैच, कंबाइन थिंग्स, ऑल और नथिंग, कंप्लीट और नथिंग। Part and parcel means essential part. Pick and choose, select best, sooner or later, in future, leaps and bounds, rapid growth. ठीक है, sooner or later, आज नहीं तो कल, मतलब फ्यूचर में होना ही होना है। leaps and bounds, rapid growth. Clear? आगे चलते हैं। Prefix, belief, डिसबिलीफ, इसमें हमें कुछ वर्ड्स यूज करके न्यू वर्ड बनाने थे, है ना, जैसे डिस, अन, और क्या था बेटा, इन,
है ना, यही था ना। और मिस इस तरह से इन प्रीफिक्सेस को यूज़ करके हमें इन वर्ड्स से नए वर्ड बनाने थे, जो बहुत इजी है, बट स्टिल आई हैव डन इट फॉर यू। बिलीव, डिसबिलीव, इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, कॉन्टिन्यू, डिसकॉन्टिन्यू, अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, ऑर्डिनरी, अनऑर्डिनरी, इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, पॉसिबल, इम्पॉसिबल। फाइन, चलिए हाँ जी, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपके चैप्टर एक्सट्रैक्ट हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं। जो बच्चे, कौन से बच्चे, तुम ही तो हो बच्चे, और कौन से बच्चे, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट जो है चैप्टर में से लिया गया है बेटा। आपके एक चैप्टर में से एक पैराग्राफ है और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर देने हैं। फाइन, सो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। दैट फ्रेज, नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट। ये क्या होगा भाई, ये वर्ड है बेटा डिफिकल्ट। ओके, difficult situations tell us that the grandmother was क्या, strong willed। ठीक है, the answer is strong willed। 4 options are here, you have to choose one, so the answer will be strong willed। Okay, so complete the sentence, complete the following with the correct option from those given in the brackets। Grandmother did not reply when the narrator asked if she was all right because she might have been too इमोशनल। मतलब जब नरेटर ने उनसे पूछा, जब नरेटर शादी से वापस आई और ग्रैंड मदर को देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे, तो उन्होंने पूछा, तो शी ओनली नॉडेड बट नॉट रिप्लाइड। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी उस टाइम पे कि वो कुछ कह नहीं पाई। ठीक है, तो इसलिए टू इमोशनल, दिस इज द आंसर। फाइन, ओके। Identify the clue from the extract that indicates a rural setting with traditional customs। Traditional custom, कौन सी लाइन ऐसी है जो ये शो कर रही है कि हाँ ये प्रॉपर एक पुराने टाइप का एक सीन बनाया हुआ है। देखो, ये मैंने उस टाइम बोला भी था, वी वर स्लीपिंग इन ओपन टेरेस। यहाँ से क्लियरली नज़र आता है, क्योंकि आज के टाइम में तो ऐसा कहीं है नहीं भाई, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है ना, बहुत रेयर कहीं नज़र आता है, नहीं तो नहीं। तो ये उस टाइम पे की बात है, पहले सब लोग छत पे सोते थे, किसी की छत की कोई बाउंड्री नहीं होती थी, सब साथ में मिल के मज़े से रहते थे, है ना, पता ही नहीं चलता था कौन किसके घर का बच्चा है, कहाँ पहुँच गया है ना। तो those were very beautiful days, I would say, है ना, I must say। Okay, so next one is which line of the extract established a tender atmosphere? Her affectionate hands touched my forehead। This is the answer। Which of the following aspect is not emphasized in the given extract? Extract में किस चीज़ पे ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है? Emotional turmoil of grandmother, the affectionate bond between the narrator and her grandmother, grandmother's regret, और the narrator's concern। किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है? इमोशनल टर्मोइल जो था वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं दिखाया गया है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। This is the paragraph. I have decided about to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. I will work very hard. I will keep Saraswati Puja day during Dussehra as deadline and so on। ठीक है, the first question is what does the grandmother's statement I want to be independent reveal about her character? जो grandmother जो है, जो उन्होंने statement दी है I want to be independent, इससे उनके कैरेक्टर की कौन सी क्वालिटी, इनसे उनका कौन सा ट्रेट हमें नज़र आता है? शी वेटेड टू बी लिटरेट, शी डिज़ायर्स सेल्फ सफिशिएंसी, शी वॉन्ट्स टू प्रूव हर इंटेलिजेंस टू अदर्स, शी फील्स प्रेशराइज्ड बाय सोसाइटी। ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, वॉन्टेड टू बी लिटरेट ये तो है, लेकिन यहाँ से क्या कि इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, पढ़ने लिखने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर इंडिपेंडेंसी की बात हो रही है, तो ये भी नहीं है और किसी को प्रूव नहीं करना था। हाँ, सेल्फ सफिशिएंसी की मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़े, है ना। So fill in the blank with the appropriate option from the given brackets। The grandmother determination shows that learning has no age limit।
नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग विद सुटेबल रीजन। द ग्रैंड मदर, ये ऐसे कैसे आ गई हैं, ऐसे कैसे हो रहा है, ये लाइन मैच हो रही है, ठीक है, देख लेना बेटा। द नरेटर लाफ्स एट हर ग्रैंड मदर्स डिसीजन टू लर्न द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 62 बिकॉज, क्यों हंसी थी वो, बिकॉज उसको लगा कि 62 की एज काफ़ी ज़्यादा होती है और ऐसे में लर्निंग शुरू करना सच में थोड़ा अजीब है। List any 2 qualities displayed by grandmother: determination and strong will. How can we say that narrator is making assumption about her grandmother? She assumes that her grandmother is too old to learn because she had gray hair, wrinkles and wore spectacles. So these are the answer. If you want to take screenshot, please take it. So now question answers. Why do you think the grandmother felt embarrassed to ask someone else to read her while the narrator was away? आपको क्यों लगा कि ग्रैंडमदर को बहुत एम्बैरेस फील हुआ किसी से पूछने में कि कोई उनके लिए नावल पढ़ दे? ऐसा उनको मतलब इतना शर्मिंदा क्यों उनको फील हुआ अपने आप में? ऐसा उनको मतलब क्या सोच थी इसके पीछे? The grandmother felt embarrassed to ask someone else to read to her while the narrator was away because reading was very personal and emotional activity for her. She shared a special bond with the narrator. It was not just about understanding the text but also about spending time together and feeling connected. मतलब दूसरे से पूछने में उनको इसलिए अजीब लग रहा था क्योंकि पढ़ना उनके लिए बहुत पर्सनल और बहुत इमोशनल एक्टिविटी थी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वो जो काशी यात्री की जो प्रोटैगनिस्ट है उससे अपने आप को रिलेट करती थी, तो ये बहुत इमोशनल चीज़ थी उनके लिए। दूसरी बात, सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ना मतलब टेक्स्ट को समझना या बस इतना ही था कि स्टोरी सुन ली, ये था कि इसके बहाने वो आपस में एक दूसरे के साथ टाइम शेयर करते थे, टाइम स्पेंड करते थे और एक दूसरे के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करते थे। Moreover, the grandmother was illiterate and this might have made her feel insecure and dependent on others. तो जैसे कि वो illiterate थी तो उनको लगा कि मतलब दूसरों को अगर मैं बताऊंगी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो इट इज़ नॉट ओके, तो वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करती थी। आस्किंग समवन एल्स टू रीड कुड हैव मेड हर फील ashamed of her inability to read, especially in front of people who might not understand her feelings. तो दूसरों को बताने में उनको थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी कि वो उनकी फीलिंग को नहीं समझ पाएंगे कि क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे, क्या सर्कमस्टेंसेस थे जो वो नहीं पढ़ पाई और आज वो क्यों उसके लिए इतनी ईगर है, ऐसा क्या है उस नावल में, वो उस चीज़ को नहीं समझेंगे। इवन क्या करेंगे, कुछ भी अपने एक एजम्पशंस बना सकते हैं माइंड में। She was also a self-respecting person and did not want to trouble others to show her weakness. तो वो एक अपने आप में एक self-respecting person थी जो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई परेशान हो या फिर उनकी weakness को कोई जाने या समझे। Her embarrassment also came from her sense of dignity and pride. मतलब अपने आप में देखो एक सम्मानित लेडी थी तो उनको ये लगा कि वैसे तो मैं इतनी अच्छी वेल टू डू फैमिली से हूँ और मैं किसी को जाके बताऊँ कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं नावल नहीं पढ़ पाती, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं था। शी प्रेफर्ड टू क्वाइटली बेयर द डिफ़िकल्टी रादर देन ओपनली आस्क्ड फॉर हेल्प। तो उनको लगा कि जो प्रॉब्लम है वो खुद ही मैं बर्दाश्त करूं कि औरों को जाके बताने से तो ये अच्छा है। This shows her strong character and the emotional importance of education in her life. तो ये एक तरफ जहाँ उनके strong character को दिखा रहा है, दूसरी तरफ उनका जो emotional जो part है वो दिखा रहा है। Secondly, जो education की importance होती है life में वो दिखा रहा है। आज नहीं तो कल education की आपको ज़रूरत पड़ेगी। फाइन, तो जो बच्चे जिनको लगता है ना कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है वो एक बार समझ लें कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द नरेटर इनिशियली laughs at her grandmother's determination to learn at the age of 62? एज आई टोल्ड यू कि बचपने में उसको लगता है कि अब क्या ही पढ़ेंगी दादी, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार समझते हैं कि वो क्यों हंसने लगी। द नरेटर इनिशियली laughs at his सॉरी ये बेटा यहाँ पर
है ना, ये मिस्टेक है, हर आएगा यहाँ पर, है ना। इसको ठीक कर लेना। अपने ग्रैंड मदर की डिटर्मिनेशन को देख के मतलब कि 62 इयर्स की एज में वो पढ़ेंगी, उनको अजीब लगा। क्यों? शी फाइंड्स इट अनयूजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड फॉर समवन सो ओल्ड। ये क्या हो रहा है भाई? For someone so old to start studying. In society, learning is often associated with children and young people, so the idea of an elderly person going to school seems amusing to her at first. ये इतनी मिस्टेक्स कैसे हैं? ठीक है, तो शुरू में उनको ये लगा कि 62 इयर्स की एज में, इतना ओल्ड होने के बाद, बूढ़ा होने के बाद, बाल सफ़ेद हैं, रिंकल्स हैं, ऐसे में कोई क्या पढ़ेगा, मतलब इस वजह से वो थोड़ा सा बचपने में हंस पड़ी। She also, my God, how can that possible? ऐसे कैसे है? So sorry बेटा, I'm really sorry. She also underestimated her seriousness and think that she may not be able to keep up with learning at that age. तो उनको लगा कि इतनी एज में वो नहीं कीप अप कर पाएंगी पढ़ाई लिखाई का, जो ये जो सारी चीज़ें हैं वो नहीं झेल पाएंगी। Her strong determination appears surprising and she does not immediately realize how important it is for her. मतलब उनका जो डिटर्मिनेशन था वो सच में बहुत सरप्राइजिंग था, उनको ऐसा कुछ लगा नहीं था शुरू में नरेटर को। However, her laughter is not meant to insult her. ये बात ध्यान में रखें कि उनका मतलब, उनकी जो मंशा थी वो उनको इंसल्ट करना नहीं था। It comes from innocence and surprise. Later she understands her dedication and feels proud of her efforts, realizing that there is no age limit for learning. बाद में उनको समझ में आता है, ठीक है, और वो इस चीज़ को रियलाइज करती हैं कि पढ़ने की कोई एज नहीं होती है। What significance does the story of काशी यात्री have in both grandmother's life in the story? Both grandmother कौन सी बेटा? एक काशी यात्री की प्रोटैगनिस्ट, OMG, एक काशी यात्री की प्रोटैगनिस्ट और दूसरी हमारी स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट। दोनों में क्या similarities थी? So the story of Kashi Yatri holds great significance in the grandmother's life as it becomes the main reason for her strong desire to learn how to read and write. सच में बहुत बहुत बड़ा significance रखती हैं grandmother की life में ये story, क्योंकि इस story ने ही उनको realize कराया कि कुछ incident, कुछ circumstances ऐसे बने कि उनको realize हुआ कि पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है। She was deeply interested in the story, especially in the character of the old woman who saved money all her life to visit Kashi. वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी उस स्टोरी में। किसकी स्टोरी में? जो प्रोटैगनिस्ट थी काशी यात्री की, कि उन्होंने पूरी लाइफ कैसे स्ट्रगल किया वो पैसे जमा करने के लिए। किसके लिए? कि उनको काशी यात्रा करनी थी, उसके लिए। तो वहाँ से वो अपने आप को कहीं ना कहीं दोनों को एक जगह रखकर देखती थी। सो द ग्रैंड मदर वुड ईगरली वेट फॉर ईच एपिसोड एंड डिपेंडेंट ऑन द नरेटर टू रीड इट अलाउड टू हर। मतलब वो ईगरली वेट करती थी और नरेटर को के ऊपर ही डिपेंड थी कि वो उनको पढ़ के सुनाए। When the narrator went away, she could not continue following the story on her own. This made her feel helpless and dependent, and she was deeply upset at not being able to read the next part. जब narrator चली गई तो उस टाइम पे कोई ऐसा नहीं था जिससे वो कह सकती कि वो उनके लिए पढ़ दे, ना वो खुद पढ़ पाई। तो उस टाइम पे उनको बहुत बेबस, बहुत असहाय सा महसूस हुआ और बहुत अपसेट हुई कि वो पढ़ नहीं पा रही हैं जो नेक्स्ट पार्ट था नॉवेल का। This experience made her realize the importance of education and self-reliance. तो ये जो एक्सपीरियंस था, इससे उनको रियलाइज़ हुआ कि पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है। अब 1 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है, मैं एक सिप ले लूँ पानी की। ओके, she decided that she would no longer depend on anyone else to resolve
to learn reading and writing even at the age of 62. अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी. इवन 62 ईयर्स की एज में उनको लगा कि नहीं, मुझे पढ़ना है. Thus काशी यात्री becomes a टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ. सच में काशी यात्री उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है. इट इंस्पायर हर टू ओवरकम हर लिमिटेशंस एंड वर्क हार्ड टू अचीव हर गोल. थी उनको इंस्पायर करती है कि किसी भी लिमिटेशंस को ओवरकम करके, किसी भी ऑब्स्टिकल को पार करके वो अपने गोल को अचीव करे. द स्टोरी नॉट ओनली एंटरटेन्स हर बट ऑल्सो मोटिवेट्स हर टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट. It highlights the theme that there is no age limit for learning and the determination can help a person achieve anything. तो ये जो स्टोरी है ये क्या है कि ये थीम को हाईलाइट करती है कि पढ़ने की कोई लिमिट नहीं, कोई एज लिमिट नहीं होती है. सिर्फ आपके अंदर पढ़ने का जुनून होना चाहिए, आपके अंदर करने का जुनून होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द ग्रैंड मदर्स डिजायर टू लर्न कन्नड़ अल्फाबेट रिफ्लेक्ट अबाउट हर. ग्रैंड मदर की कौन सी क्वालिटी हमें नज़र आती है कि उनकी जो डिज़ायर थी कन्नड़ सीखने की, इससे हमें क्या समझ में आता है. The grandmother's desire to learn the Kannada alphabet reflects her strong determination, self-respect and willingness to improve herself despite her old age. तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि उनका जो strong determination था, जो उनकी self respect थी, जो विलिंगनेस थी अपने आप को इम्प्रूव करने की, इतनी एज में भी वो हमें नजर आती है. एट द एज ऑफ 62, when most people are not expected to begin formal learning, she shows great courage by deciding to become literate. This highlights her belief that there is no age limit for gaining knowledge. 62 ईयर्स की एज में भी जब लोग मतलब ऐसे हो जाते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ऐसे में भी इतनी हिम्मत दिखाना और अपने आप को ये डिसाइड करना कि नहीं अब मुझे पढ़ना है, तो ये उनका जो बिलीव है कि हाँ कि पढ़ने की कोई एज नहीं होती, नॉलेज गेन करने की कोई एज नहीं होती, ये हमें दिखाता है. हर डिसीजन ऑल्सो शोज हर सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस. उनकी जो क्वालिटी है सेल्फ रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस की, ये भी हमें शो करता है उनका डिसीजन. शी फील्स अनकंफर्टेबल डिपेंडिंग ऑन अदर्स टू रीड फॉर हर, स्पेशली आफ्टर मिसिंग अ पार्ट ऑफ द स्टोरी काशी यात्री. इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग हेल्पलेस, शी टेक्स अ firm decision to overcome her weakness. This reflects her inner strength and desire to live with dignity. तो यहाँ से मतलब जब वो एक पार्ट उनका मिस हो जाता है और वो दूसरों के सामने जाने में उनको शर्म आती है कि मतलब मैं कैसी हूँ, मैं कैसे लगेगा कि मैं किसी और से जाके कितना डिपेंडेंट फील होगा. ऐसे में मतलब क्या है कि आगे के लिए एक बार तो जो हो गया, आगे के लिए ऐसा ना हो, आगे के लिए ऐसा नहीं उनको फेस करना. वहीं से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे इस वीकनेस को रिमूव करना है. दिस रिफ्लेक्ट्स हर इनर स्ट्रेंथ एंड डिजायर टू लिव विद डिग्निटी. ये उनकी इनर स्ट्रेंथ को और जो मतलब जो उनकी डिग्निटी है, जो उनका सम्मान है, वो दिखाता है. Moreover, his eagerness to learn the Kannada alphabet shows her deep love for learning and curiosity. और हाँ, उनकी जो सीखने की इच्छा है कन्नड़ अल्फ़ाबेट को, वो उनका जो अपनी जो लर्निंग है और जो उनकी क्यूरियोसिटी है, ये भी हमें शो करता है. क्यूरियोसिटी क्या होती है बेटा? जिज्ञासा, जानने की इच्छा. ओके, सो शी इज़ मोटिवेटेड नॉट जस्ट बाय द स्टोरी बट बाय अ जेन्युइन विश टू एडुकेट हर सेल्फ. सिर्फ स्टोरी पढ़ के नहीं मोटिवेट हुई है वो, हाँ उनको अपने आप को एडुकेट करने की एक इच्छा हुई है कि हाँ, इच्छा मतलब एक जेन्युइन फीलिंग आई है कि नहीं मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, मुझे अनपढ़ नहीं रहना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है. She works hard, practices regularly and successfully achieves her goal in short time, which shows her dedication and perseverance. वो बहुत मेहनत करती हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करती हैं और सक्सेसफुली अपने गोल को अचीव करती हैं बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड में, जो उनके डेडिकेशन को, उनकी प्रिजर्वेशन को, उनकी प्रिजर्वेंस को, उनकी दृढ़ता को दिखाता है. Overall, the grandmother's desire to learn the Kannada alphabet reflects her inspiring qualities such as determination,
self-reliance, discipline and positive attitude towards lifelong learning. तो ओवरऑल जो ग्रैंड मदर की जो कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखने की इच्छा है वो उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ को हाईलाइट करती है. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. What lesson can we infer from the grandmother's action of touching the narrator's feet? नरेटर के पैर छूने से उनकी क्या क्वालिटी, क्या चीज़ हमें, मतलब उससे हमें क्या सीखने को मिलता है. The grandmother's action of touching the narrator's feet teaches us a very important lesson about humility, respect for knowledge and the value of education. Right? In Indian culture, elders are usually respected by touching their feet, but in this story, the grandmother does the opposite. Even though she is older, she touches the feet of the young narrator because she considers him her teacher. This shows that gives more important to knowledge than to age. मतलब उनके पैर छूने से हमें क्या सीखने मिल रहा है. यूजुअली हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं, लेकिन जिससे भी आप कुछ सीख रहे हैं, जो आपको कुछ अच्छा सिखा रहा है, जो आपको ज़िंदगी में कुछ आगे ले जाए, ऐसा कुछ सिखा रहा है, वो हमेशा आपका गुरु ही है. और उसके पैर छूने में कोई शर्म नहीं है. अपनी टीचर के रिस्पेक्ट करने में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए. और अपनी जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है, उसकी हमें वैल्यू करनी चाहिए. हर एक्शन रिफ्लेक्ट्स हर डीप सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी. शी डज नॉट लेट हर एज और स्टेटस कम इन द वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट. मतलब उनका स्टेटस, उनकी ईगो कहीं बीच में नहीं आई कि मैं अपनी पोती के पैर छू. नहीं, उन्होंने उनको रिस्पेक्ट दी है. ठीक है, किसको रिस्पेक्ट दे रही हैं वो? जिन्होंने उनको पढ़ने लिखने में हेल्प की है, जिन्होंने उनको पढ़ना सिखाया है. इट टीचेस अस दैट अ ट्रू लर्नर मस्ट ऑलवेज बी हम्बल एंड ग्रेटफुल टुवर्ड्स द टीचर नो मैटर हु दे आर. तो ये हमें बताता है कि जो हमारे टीचर हैं, जो हमें अच्छा सिखा रहे हैं, उनके प्रति हमें हमेशा समर्पित, हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए, हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए. आजकल हैं कुछ बच्चे जो थोड़ा सा मतलब अपने स्टेटस को लेके, अपनी ईगो को लेके थोड़ा सा चीज़ों को कहीं से कहीं ले जाते हैं. आजकल हम देख रहे हैं सोसाइटी में बहुत कुछ हो रहा है. कोई सुसाइड कर रहा है, कोई टीचर्स की कंप्लेन कर रहा है, कहीं बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. लेकिन अगर बच्चे सिर्फ इस बात को समझ लें कि वो टीचर है और उसने अगर मारा भी है, उसने अगर डांटा भी है, तो वो कहीं ना कहीं मेरी भलाई के लिए है, वो आगे जाके मेरे काम आने वाला है. सिर्फ इतनी सी बात समझने की देर है तो बहुत सारी चीज़ें ईजीली सॉल्व हो सकती हैं. सो दिस एक्ट ऑफ हाईलाइटिंग द आइडिया that education makes a person worthy of respect. The grandmother acknowledges that the narrator has given her the gift of literacy, which was changed her life by making her independent and confident. Therefore, she expresses her gratitude in a traditional and meaningful way. मतलब उनको समझ में आया है, मतलब उनको पता है कि जो नरेटर हैं उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, उनकी लाइफ को चेंज कर दिया, उनको इंडिपेंडेंट बनाया, उनको कॉन्फिडेंट बनाया है, तो वो अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रही हैं. ठीक है. ओवरऑल वी लर्न दैट नॉलेज इज ग्रेटर देन एज. क्या समझ में आया हमें यहाँ पर कि नॉलेज एज से बड़ी होती है. एंड वन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड ऑनर दोज हु टीचर्स. हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो जो हमें पढ़ाते हैं. द ग्रैंड मदर्स एक्शन इंस्पायर अस टू बी हम्बल, रिस्पेक्टफुल एंड ईगर टू लर्न थ्रू आउट आवर लाइव्स. आई होप इट इज़ क्लियर. स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो, फिर आगे चलते हैं. ओके, I think this is the last short question. After this we have नहीं अभी तो और हैं. Okay. What does the following line tell us about the broader theme of the story? For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. अगर किसी अच्छे कारण के लिए आप डिटरमाइंड हैं, किसी अच्छे रीज़न के लिए आप चल पड़े हैं, मतलब अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं. सो द लाइन फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल एक्सप्रेसेस द मेन theme of the story
Strong determination and a clear purpose can help a person achieve even difficult goals. अगर आपका determination strong है, अगर आप अपने goal को लेके clear हैं, तो आपको कुछ भी रोक नहीं सकता है. It is clearly reflected in the grandmother's decision to learn reading and writing at the age of 62. देखो ये 62 में बार बार हाईलाइट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है. 62 आप सोच के देखो कि अभी पढ़ना ऐसा लगता है कि क्यों, बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सब ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत दिल से पढ़ते हैं, बहुत मन से पढ़ते हैं, पर कुछ लोगों को लगता है क्यों, है ना, ठीक है चल रहा है. आप ये देखो 62 ईयर्स की एज में जिनके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सब कुछ फेस किया होगा, जिनकी जो मेमोरी पावर भी अब वो नहीं होगी, वो भी इतना डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ रही है. Despite facing challenges like old and lack of education, she does not give up. इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद, लैक ऑफ एजुकेशन के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. हर डिजायर टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड रीड काशी यात्री ऑन हर ऑन मोटिवेट्स हर टू वर्क हार्ड एंड स्टे फोकस्ड. उनकी जो इच्छा थी कि वो इंडिपेंडेंट रहें, और काशी यात्री जो उनको मतलब जो जिसने मोटिवेट किया है उनको, वो हार्ड और मतलब फोकस रहने के लिए, दिस शोज दैट डिटर्मिनेशन कैन हेल्प ओवरकम एनी बैरियर. मतलब आपके अंदर अगर डिटर्मिनेशन है तो कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल, कोई समस्या, कुछ भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती. दिस लाइन ऑल्सो गिव्स अ यूनिवर्सल मैसेज दैट विद डेडिकेशन, पेशेंस एंड स्ट्रॉन्ग रीजन anyone can succeed in life. Anyone, mind you me, anyone. It teaches us that age of difficulties should never stop us from learning and achieving our goal. Problem कभी हमारे रास्ते में इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, मतलब हमें उसे इतना बड़ा नहीं मान लेना चाहिए कि वो हमारे गोल तक पहुंचने में हमारे लिए समस्या बन सके या हमें रोक सके. Next question is, how effectively does the story highlight the value of education in supporting personal independence? ये स्टोरी कैसे हाईलाइट करती है एजुकेशन की वैल्यू को, और एजुकेशन हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी इंडिपेंडेंस को कैसे बनाती है, कैसे इंप्रूव करती है. सो द स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस वेरी इफेक्टिवली थ्रू द ग्रैंड मदर्स एक्सपीरियंस. अगर हम ग्रैंड मदर के एक्सपीरियंस को देखें तो यस, एक्चुअली स्टोरी tells us the value of education in supporting personal independence. At first, she is completely dependent on the narrator to read the story काशी यात्री. शुरुआत में जब हमने देखा तो जो दादी माँ थी वो बिल्कुल डिपेंडेंट थी नरेटर के ऊपर कि वो उसको नेक्स्ट जो एपिसोड है वो पढ़ के सुनाए. ठीक है. सो when she goes away, she feels helpless and realizes how difficult life is without knowing how to read and write. जब नरेटर शादी में चली जाती है for 1 week, at that time she realizes कि लाइफ में लिखना और पढ़ना कितना ज़रूरी है. Although ऐसा नहीं था कि willingly वो नहीं पढ़ी, the circumstances were like that, कि circumstances ऐसे थे कि इट वॉज नॉट सपोर्टिंग कि वो पढ़ पाए या उनको कोई गाइड कर पाए, उनको एजुकेशन की वैल्यू समझा पाए. बट नाउ एट द एज ऑफ 62 शी रियलाइजेज कि यस, लिखना और पढ़ना कितना ज़रूरी है. द सिचुएशन बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट फॉर हर लाइफ. तो ये जो सिचुएशन सारी बनी, ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट प्रूव होती है. शी डिसाइड्स टू लर्न द कन्नड़ा अल्फ़ाबेट डिस्पाइट हर ओल्ड एज. ओल्ड होने के बावजूद भी उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ, अब वो पढ़ना और लिखना सीखेंगी. थ्रू हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड रेगुलर प्रैक्टिस शी बिकम्स लिटरेट. बहुत ज़्यादा मेहनत की, डिटर्मिनेशन, रेगुलर प्रैक्टिस, और लास्ट में क्या हुआ, वो लिटरेट हो गई. लाइक उन्होंने पढ़ना और लिखना सीख लिया. सो एज अ रिजल्ट शी इज एबल टू रीड हर ऑन एज एंड नो लॉन्गर डिपेंड्स ऑन अदर्स. उसका रिजल्ट क्या हुआ कि नाउ शी इज एबल टू रीड हर सेल्फ, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है. हर जर्नी क्लियरली शोज दैट एजुकेशन इज नॉट just about gaining knowledge but also about becoming self-reliant and confident. Education का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि आप लिखना पढ़ना सीखें, ये आपको सेल्फ
डिपेंड भी बनाती है। द स्टोरी इफेक्टिवली कन्वेज दैट एजुकेशन गिव्स अ पर्सन freedom, dignity and independence, making life easier and more meaningful. Education आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है, इजी बनाती है, आपको इंडिपेंडेंट बनाती है और कॉन्फिडेंट बनाती है. I hope you have got the answer properly. Now let's move towards the next question. Yes, long question. The grandmother sets the Saraswati Puja day during the Sera as the deadline to learn to read and later touches her granddaughter's feet as a mark of respect. So grandmother एक डेडलाइन रखती हैं कि सरस्वती पूजा वाले दिन तक वो लिखना और पढ़ना सीख लेंगी और फिर सेम डे वो ग्रैंड अपनी ग्रैंड डॉटर के जो पैर छूती हैं. क्यों? क्योंकि एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज एक्शंस एंड डिस्कस हाउ दे हाईलाइट द थीम ऑफ डिटर्मिनेशन, ह्यूमिलिटी एंड रिवरेंस फॉर एजुकेशन. तो ये जो एक्शंस हैं ये क्या दिखाते हैं, कैसे एजुकेशन की वैल्यू समझाते हैं, डिटर्मिनेशन की थीम दिखाते हैं, इसको हमें एक्सप्लेन करना है. राइट? So the grandmother's action carry deep symbolic meaning and reinforce the story's central themes of determination, humility and reverence for education. Grandmothers के action बहुत deep symbolic meaning लेकर आते हैं जो हमें education की value बताते हैं और education की क्या वैल्यू है, एजुकेशन क्या कर सकती है, डिटर्मिनेशन की क्या वैल्यू है, डिटर्मिनेशन के क्या मायने हैं, चैप्टर की क्या थीम है, ये हमें समझ में आता है. सेटिंग सरस्वती पूजा ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज दिस डे इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद गॉडेस सरस्वती, द डायटी ऑफ लर्निंग एंड विस्डम. सरस्वती पूजा के दिन को एज अ डेडलाइन रखना कि मुझे उस दिन तक पढ़ना है, क्या दिखाता है? पहली बात तो ये दिन अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है. इस दिन, ये दिन किसका होता है? सरस्वती पूजा, लाइक माँ सरस्वती का दिन होता है जो ऑलरेडी हमारी विद्या की देवी हैं. सो बाय चूजिंग दिस ऑस्पिशियस ओकेजन द ग्रैंड मदर टर्न्स हर पर्सनल गोल. इतने पावन जो ओकेजन है उसको चूज करने के बाद ग्रैंड मदर अपने पर्सनल गोल की तरफ चलती हैं. लर्निंग टू रीड इनटू समथिंग सैक्रेड एंड पर्पसफुल. लिखना सीख रही हैं एक बहुत ही पवित्र, आप कह सकते हैं, एक रीजन के लिए और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए. मतलब शी इज लर्निंग रीडिंग पर्पसफुली. उनके पास अपना एक पर्पस है कि शी वॉन्ट्स टू बी independent. She don't want to rely on others now. It reflects her strong determination. Despite her old age, the challenges she faces, she commits herself to a clear goal and works steadily towards it. The fixed deadline also adds discipline and urgency, showing that determination is not just desire but sustained effort ओवर टाइम. उनकी स्ट्रॉन्ग डिजायर तो ये शो करता ही है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन तो शो करता ही है. जो चैलेंजेस वो फेस करती हैं, स्पेशली एक दिन, एक डेडलाइन रखना, वो एक डिसिप्लिन को भी दिखाता है, एक रेगुलरिटी को दिखाता है और ये भी दिखाता है कि कुछ सीखना, कुछ नया करना सिर्फ इच्छा रखने से नहीं होता. यू शुड हैव द डिटर्मिनेशन इनसाइड योर स्पिरिट. सो टचिंग हर ग्रैंड डॉटर्स फीट इज an even more powerful gesture. In Indian culture, elders are typically respected by the younger generation, not the other way around. By bowing to her granddaughter, the grandmother reversed the tradition roles to acknowledge that her granddaughter is now her teacher. अपनी granddaughter के पैर छूने में, मतलब एक तरह से उन्होंने ट्रेडिशन को रिवर्स कर दिया है, बट एक बहुत बड़ी चीज समझाई है, that the teacher is a teacher always. फर्क नहीं पड़ता वो एज में आपसे छोटा है या बड़ा है. अगर कोई बच्चा भी आपको कुछ अच्छा सिखा रहा है तो उसके पैर छूने में आई थिंक कोई शर्म वाली बात नहीं है. सो दिस एक्ट डेमोन्स्ट्रेट प्रोफाउंड ह्यूमिलिटी. शी इज विलिंग टू सेट असाइड ईगो,
एज एंड सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू लर्न इट। अपनी ईगो को, अपना नंबर ऑफ एज सबको साइड पे रख के, सोशल नॉर्म्स को साइड पे रख के वो एक रिस्पेक्ट शो करती हैं। इट शोज दैट ट्रू रिस्पेक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन एज और स्टेटस बट ऑन knowledge. Together, these actions highlight a deep respect for education. The grandmother treats learning as something sacred, worth devotion and personal transformation. The story suggests that education has the power to elevate a person at any stage of life, that the pursuit of knowledge requires both determination to persist and humility to learn from others, regardless who they are. मतलब ये दोनों चीजें साथ में क्या दिखाती हैं कि एजुकेशन की रिस्पेक्ट तो जरूरी है ही, साथ में जब जो कोई आपको अच्छी चीजें सिखा रहा है उसकी रिस्पेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। और एजुकेशन सिर्फ नॉलेज नहीं देती है, एजुकेशन आपको कॉन्फिडेंस देती है, एजुकेशन आपको वे ऑफ लिविंग देती है, एजुकेशन इज अ बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। इन एसेंस द ग्रैंड मदर बिकम्स अ मॉडल ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, showing that it is never too late to learn. And that true wisdom begins with respect for knowledge and the willingness to bow before it. तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कुछ भी सीखने के लिए कोई भी समय पुराना नहीं हो जाता, कुछ भी एज ज़्यादा नहीं हो जाती। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपके अंदर सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग विल, एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। दूसरा, रिस्पेक्ट करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर एजुकेशन इन द स्टोरी। ओके, सो yes, this way we have completed the chapter. I hope chapter सभी को समझ में आया है। Through this video I tried to clear all your doubts. मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको चैप्टर में जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएं, आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहे और आप स्टोरी को बहुत अच्छे से समझ पाएं विद ऑल दी क्वेश्चन आंसर्स, ईच एंड एवरीथिंग। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है सो प्लीज लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, hit the like button, share with your friend and do subscribe the channel. Thank you.